Good morning, student. Today I am going to teach you Standard 7, Semester 1, Unit 8, Delhi during medieval period. Bhagwati Ben went on a tour of North India. She was interested in history and so she noted down information about the rulers of Delhi in her diary. This tour diary was read out in classroom. What was read out is as below. What she noted in her diary? She noted in her diary about the dynasties. In this lesson, we are going to learn about the Delhi Sultanate, enthroned by various kings and established dynasties. So here is the date line. We can easily remember, and how we can draw date line we should understand and we can learn. Now let's see the date line. Here I make a date line Delhi during the medieval period, which events and which dynasty happen on specific date, established in specific date, which I mentioned here. Now let's learn how we can draw this line according to the ascending order dates we should return, and whatever event happened on specific date we should return first. Here first is, you can see that here the Delhi Sultanate was founded in slave means here Ghulam dynasty by Qutbuddin Aibak. Slave dynasty founded by Qutbuddin Aibak in 13th century 1206 CE. Here the CE means before the birth of Jesus Christ. Now the second event is Razia Sultan was first female ruler over Delhi in 1236 CE. The Kakatiya dynasty in Warangal, Andhra Pradesh, ruled by Queen Rudramadevi in year of 1259 to 1589 CE. Now the fourth one is Khilji dynasty, ruled over Delhi, founded by Jalaluddin Khilji in 1296 CE. The fifth one is Tughlaq dynasty, founded by Ghiyasuddin Tughlaq in 1320 CE. Sixth one is the Hindu kingdom of Vijayanagar in south of Tungabhadra river, founded by Jadav clan Harihar and Bukka in year of 1336 CE. Seventh one is Bahmani Sultanate, founded by Hassan Gangu in year of 1347 CE. Now the eighth one is Lodi dynasty in Delhi by Afghan leader Behlol in 1451 CE. Now the end of the Delhi Sultanate by Battle of Panipat, which was happened in 1526 CE. Babur versus Ibrahim Lodi. All these dynasties is called Delhi Sultanate, and we are going to learn in this lesson. Now let's see the first dynasty, slave गुलाम डायनेस्टी, जिसे हम बोलते हैं गुलाम वंश. सो गुलाम वंश की शुरुआत कैसे हुई, ये किसने शुरू किया? नाउ लेट्स सी द स्टोरी अबाउट द स्लेव डायनेस्टी. द लिटिल बिट स्टोरी हियर. A Mamluk was a soldier of origin who had converted into Islam.
द फिनोमिनन स्टार्टेड इन 9th सेंचुरी, यानी कि ममलूक नाम का एक सोल्जर था जिसने इस्लाम में अपना धर्मांतर किया हुआ था, और ये घटना शुरू हुई थी 9th सेंचुरी में. एंड ग्रेजुअली द ममलूक बिकम अ पावरफुल मिलिट्री क्लास इन वेरियस मुस्लिम सोसाइटी. ममलूक हैज़ अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर, most notably in Egypt, but also in Levant, Iran, and India also. In 1206, Muhammad of Ghor, Sultan of Ghor Empire, was assassinated since he had no children. यानी कि जो उसके बच्चे नहीं थे उसके लिए उसको assassinated यानी कि उसको षड्यंत्र से मार दिया गया था. His empire split into minor सल्तनत, यानी कि जो उसका राज्य था उसके मर जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट गया था. एंड लीड बाय हिज फॉर्मर मलमुक जनरल्स, और मलमुक के जो जनरल्स यानी कि जो उसके अधिकारी जो थे उसके द्वारा ये स्टेट चलता था. और उसमें जो था कि ताज उद्दीन येदोज बिकम अ रूलर ऑफ गजनी, गजनी को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था. एंड मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी गॉड ऑफ बंगाल, उसको बंगाल दिया गया था. एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम अ सुल्तान ऑफ दिल्ली, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, यानी कि उसको जब वहाँ से दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया गया तभी से शुरू हुआ था गुलाम डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी. यानी बतौर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपने राजा के दरबार में क्या था, एक सिर्फ गुलाम, एक नौकर, एक काम करने वाला आदमी था, और उसको वहाँ का शासक नियुक्त किया गया था. और वहाँ से उसने गुलाम डायनेस्टी की शुरुआत की थी. ये गुलाम डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज ऑल्सो स्लेव, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल दैट गुलाम एंड स्लेव डायनेस्टी. The Delhi Sultanate was founded in the beginning of 13th century in 1206 CE after the death of Ghori. Ghori was killed by slaves. One of these loyal slaves became the commander of established control over the throne of Delhi. He was assassinated by the Qutbuddin Aibak, established control over the throne of Delhi. Thus, the slave dynasty started ruling over Delhi, though the faced many difficulties in establishing his power in India. He managed to provide stable administration. He had started in the construction of मीनार, यानी कि दिल्ली में आने के बाद उसने काफ़ी सारी इमारतें बनवानी उसने शुरू की. उसमें से एक था कुतुब मीनार. कुतुब मीनार जो शुरुआत में था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था, लेकिन जो उसको ख़त्म किया था उसने जो इल्तुतमिश ने पूरा किया था. इस सन इन लॉ इल्तुतमिश, जो उसका सन इन लॉ था यानी कि उसका जमाई था, वो कौन था? इल्तुतमिश. हु सक्सीडेड हिम, यानी उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासन में आया था. कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनार, यानी कि उसका कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन यानी कि बांधकाम था तो उसने पूरा करवाया था. लेट्स सी हियर द पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार. This is the picture of Qutub Minar, which is situated in Delhi. Qutub Minar basically it's tall heighted building. This minar, which came to be known as the famous Qutub Minar, is shown in picture 8.1. Here you can see that the architecture style in which Qutub Minar was constructed a mixture of both Hindu and Muslim style, यानी कि जो कुतुब मीनार है वो हिंदू और मुस्लिम स्टाइल दोनों में बनाया गया है. दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग सल्तनत एज, यानी कि सल्तनत युग के दौरान ये दिल्ली जो था वो उसका कैपिटल हुआ करता था. नाउ लेट्स सी द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश, यानी कि
यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक आया था जो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो स्लेव इन द बिगिनिंग, यानी इल्तुतमिश भी था, वो शुरुआत में पहले गुलाम हुआ करता था। ही कनकर्ड मैनी टेरिटरीज, यानी कि उसने कई क्षेत्रों में जीत हासिल की थी इन इंडिया एंड मेड द डैम पार्ट इन दिल्ली सल्तनत, और उसको इंडिया में जो दिल्ली था सल्तनत था उसके काफ़ी सारे उसने स्टेट क्षेत्र जीते थे, वो उसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था एंड उसका साम्राज्य बड़ा करने में उसको काफ़ी मदद की थी। हिज डॉटर रजिया सुल्तान एस्केंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इल्तुतमिश के मर जाने के बाद उसकी एक बेटी थी जो उसका नाम था रजिया सुल्ताना। शी एस्केंडेड थ्रोन आफ्टर हिज डेथ in 1236 CE. रजिया was the first female ruler of Sultan rule over दिल्ली, यानी कि रजिया सुल्तान भी थी जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक हुआ करती थी। According to the historian of the time, Minhas e Siraj, रजिया was a more capable and efficient ruler than her brothers. रजिया जो थी उसके भाइयों की कंपेयर में काफ़ी अच्छी शासक थी, और ऐसा मिन्हाज से सिराज को के अकॉर्डिंग कहा गया है। हाउएवर बीइंग अ वुमेन शी वाज नॉट एक्सेप्टेड एज द रूलर, एक स्त्री शासक होने की वजह से उसको भी उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। थिंक पोजिशन ऑफ मैन एंड वुमेन इज इक्वल इन सोसाइटी, यानी कि आज के ज़माने में हम देखें तो स्त्री और पुरुष की जो बात तब होती है तो इक्वालिटी यानी कि समानता की बात होती है। देन वाई रजिया सुल्तान वाज नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर, यानी उस टाइम पे रजिया सुल्तान को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्योंकि वैदिक युग से फीमेल्स को कमज़ोर माना जाता है और वो शासन नहीं कर सकती और मैन का इक्वलिटी नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता है, इसी की वजह से हुआ था। आमिर उमराव डिसलाइक रजिया एज ए रूलर, उसके दरबार में एक था आमिर उमराव जो रजिया को शासक के रूप में देखना नहीं चाहता था और वो उसको पसंद नहीं करता था। रजियास रूल बिकम टू एन एंड ड्यू टू इंटरफियरेंस ऑफ द आमिर्स, यानी कि जो आमिर्स थे वो रजिया के शासन के खिलाफ थे और उसके ही दरमियानगिरी के कारण वो उसका शासन खत्म हुआ था। देयर वॉज अ कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सल्तनत फॉर 6 ईयर आफ्टर हर डेथ, यानी कि 6 साल शासन करने के बाद ये पूरा जो राज्य था वो कम्प्लीटली काफ़ी नीचे चला गया था। एट लास्ट द आमिर्स एंथोन्ड नासिरुद्दीन, और उसके जाने के बाद आमिर्स जो थे वहाँ पे काफ़ी उनका मायने रखता था, उनकी बात सब मानते थे। एट द लास्ट आमिर एंथ्रोन्ड नासिरुद्दीन, और उसके बाद राज्य जो था वो आमिर ने किसको दिया था, नासिरुद्दीन को दिया था, द सन ऑफ इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को दिया था, इल्तुतमिश की बेटे जो थे नासिरुद्दीन उसको दिया था। ही रूलेड फॉर 21 ईयर्स, और उसने 21 साल शासन किया था। आफ्टर हिज डेथ गियासुद्दीन बलबन एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, और उसके भी मर जाने के बाद गियासुद्दीन बलबन को दिल्ली की राजसत्ता सौंपी गई थी। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर हु बॉट एन एंड टू द डिसऑर्डर एंड एस्टाब्लिश्ड पीस, और उसने दिल्ली में शांति स्थापित करने के प्रयास किए थे और काफ़ी वो सक्षम शासक था। बलबन हैड बीन द वज़ीर ऑफ नासिरुद्दीन फॉर 20 ईयर्स, बलबन जो था वो नासिरुद्दीन का 20 साल तक वज़ीर रहा था। सब्सिक्वेंटली ही रूलेड एज अ सुल्तान फॉर 22 ईयर्स, और उसके बाद बलबन को भी 22 सालों के लिए उसका सुल्तान किया निमा गया था और उसने 22 साल शासन किया था। ही डिस्केंडेंट वेर वीक, द खलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन रूल ओवर दिल्ली।
और जो बलबन था जो वो लास्ट शासक था जिसने अपना राज्य चलाने में काफ़ी मजबूती प्रदान नहीं की थी, और उसके कारण खलजी डायनेस्टी ने वहाँ पे आक्रमण किया और खलजी डायनेस्टी की उसने दिल्ली में स्थापना की और वहाँ पे उसका रूल हुआ। Here are some things to know about that, about the Delhi Sultanate period. Razia Sultana inscribed on stone and coins that she was Iltutmish's daughter. यानी कि रजिया सुल्तान का नाम जो है काफ़ी शिलालेख यानी पत्थरों पे और सिक्कों पे लिखा गया है कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। द काकटिया डायनेस्टी यूज्ड to rule over Warangal in present Andhra Pradesh. The attitude of Queen Rudrama Devi 1259 to 1289 CE, a ruler of this dynasty, was exactly the opposite of the Razia Sultana. जो रजिया सुल्ताना के भी ये काफ़ी अपोजिट थी, यानी कि उसका काफ़ी विरोध करती थी। इन हर इंस्क्रिप्शन शी एनग्रेव्ड हर लाइक मैन. Similarly, there was Queen Didda, who once ruled over Kashmir. She was affectionately called Didi by her subject. यानी कि यहाँ पे 3 स्त्री शासकों की बात की गई है। पहली एक थी रजिया सुल्तान, and the second one is Queen Rudrama Devi, and the third one is Queen Didda. Queen Didda is from Kashmir. Queen Rudrama Devi is from Warangal, present in Andhra Pradesh. She came from the Kakatiya dynasty. Now let's see the kingdom of slave dynasty is over here. And now the second one is Khilji dynasty. Have you seen the picture movie which name is Padmavat? Who played major role of Alauddin Khilji? Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor played a role of Alauddin Khilji. Now let's see the Khilji dynasty. Within 4 years of Balban death, यानी कि 4 साल बलबन की डेथ के 4 साल बाद, the Khilji dynasty established its rule over Delhi. The Turk community was belonged to Khilji in Afghanistan, was known as a Khiljis. यानी खिलजी किसको कहा जाता है? यानी अफ़गानिस्तान में जो तुर्क कम्युनिटी है, जो खिलजी अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं, उसको खिलजी कहा जाता है. एंड जलालुद्दीन खिलजी बॉट एन एंड और टू द स्लेव डायनेस्टी. गुलाम वंश का जो अंत किया था वो किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था. इन इट्स प्लेस फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी इन 1296 CE. यानी कि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी, जो बेसिकली कौन था? अफ़गानिस्तान का तुर्क था. अलाउद्दीन खिलजी, हु वॉज द बोथ ऑफ हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ, ओवरथ्रू जलालुद्दीन एंड बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली. अलाउद्दीन खिलजी भी था जो उसका भांजा था, एंड सन इन लॉ भी था, यानी कि जमाई भी था, और उसने जलालुद्दीन को भी मारकर दिल्ली में सत्ता स्थापित की थी. Alauddin Khilji was very ambitious. He controlled the interference of ulemas and umraus in the state administration. यानी कि वो खुद यहाँ पे शासन नहीं करता था, उसने उलेमाज और उमराउज को ये दिल्ली सल्तनत का शासन करने के लिए भेजा था. अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल प्राइसेस. यानी कि भाव नियमन के जो रूल्स होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किए थे. द फेमस पोएट अमीर खुसरो, हुज वर्क्स आर वेल नोन, एडोन हिज कोर्ट. अमीर खुसरो जो कवि था, काफ़ी प्रख्यात कवि था, उसको भी उसके दरबार में शामिल किया गया था. देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर
इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ एंड तगलक डायनेस्टी, यानी कि कम पूरा पतन होने के बाद वहाँ पे दिल्ली में तगलक डायनेस्टी शुरू हुई इन पावर रिप्लेसिंग द खलजी डायनेस्टी, यानी कि उसको खलजी डायनेस्टी को रिप्लेस किसने किया था? तगलक डायनेस्टी रिप्लेस किया था, और तगलक खलजी को भी हराया था तगलक लोगों ने। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द तगलक डायनेस्टी।